بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، جو میرے دل میں آیا کہ ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کروں، لیکن میں اپنی دنیا کے کتنے ہی بےغیرتوں کے منہ پر تماچے مار سکتا تھا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اندر سے بالکل ننگے ہوتے ہیں، اوپر سے عزت دار، عزتوں کا خول چڑھا کر رکھتے ہیں، باہر کی بے عزتی پسند نہیں کرتے، اندر کی بےغیرتی کو بھی بڑے مزے سے پی جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی محترم، معظم اور عزت شناس دلال ہوتے ہیں، اور اپنی نبہت دلہن کی پہلی رات کی دلالی کرتے ہیں۔ ایسے گٹرنما چہرے بہت اور تماچے مارنے والے ہاتھ کام ہیں، اس لیے میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، زبان سے کام لیا۔ تم جیسے جسے دلہن بنا کر میرے پاس لاؤ گے وہ کسی غریب کی بیٹی ہے، لیکن بہت اونچی رشوت لوں گا۔ دوسری شرط ختم کرنا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کو لے آؤ۔ وہ لرز کر ایک قدم پیچھے چلا گیا، غصے سے تھر تھر کانپنے لگا اور اپنی دونوں مٹھیاں یوں پینچنے لگا جیسے خیال ہی خیال میں میرا گلا گھونٹ رہا ہو۔ وہ سوچ کہ بند کوٹھڑی میں مجھے ننگی گالیاں دے رہا تھا، لیکن اوپر سے خود کو پرسکون رکھنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے کہا، اس وقت تم پر جو گزر رہی ہے وہی اس لڑکی کے باپ کے دل پر گزرے گی جب تم اسے بہہ کر میرے کمرے میں چھوڑ کر جاؤ گے۔ یا تو تم دونوں کی بیٹیاں شرافت اور عزت کی زندگی گزارنے کی حقدار ہیں، یا پھر دونوں کی رشوت کا مال ہے۔ تم بتاؤ وہ دونوں کیا ہیں؟ اس نے بظاہر ندامت سے سر جھکا لیا۔ خدا کے فضل سے میں ظاہر اور باطن کو آئینے کی طرح دیکھ لیتا ہوں، اس لیے میں اس کے نادم ہونے سے متاثر نہ ہو سکا۔ اس نے لجاجت سے کہا، تمہاری باتوں سے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، مجھے صرف 1 گھنٹے کی مہلت دو، ذرا سوچنے کا موقع دو، اس کے بعد تم جو کہو گے میں اسے تسلیم کروں گا۔ اچھی بات ہے، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ نکاح کا کون سا وقت مقرر ہے؟ بعد نماز ظہر 2:30 بجے۔ میں نے اپنی رسوائی دیکھی 1 بجا تھا۔ اس نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا اور باہر چلا گیا۔ جاتے وقت وہ بڑی تیزی سے ایسی کوئی تدبیر سوچ رہا تھا جس سے میری دوسری شرط کو بدل سکے، لیکن اس وقت اس کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ میں پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر جوتے اتار کر آرام سے لیٹ گیا۔ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ میرے خلاف جیسی بھی چال چلے گا میں اس کا توڑ کر لوں گا، لہٰذا اس وقت میرا ذہن چچا جان کی طرف بھٹک گیا۔ میں تصور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی کوٹھی ماتم کدہ بنی ہوئی تھی اور پولیس والے چچی جان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو میں خیالات سے چونک گیا۔ ایک نوجوان نے قریب آ کر مجھے سلام کیا، اس کے بدن پر میلے سے کپڑے تھے، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ حضور، اس نے بڑی عقیدت سے کہا، باہر سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں کے اصل مالک ہیں۔ میں اس حویلی میں بچپن سے ملازم ہوں، آپ کے کھیتوں میں بھی کام کرتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر مجھے ایسی خوشی ہو رہی ہے جیسے بڑی دولت مل گئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاؤں دابنے لگا۔ میں نے اپنا پاؤں کھینچ کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسی خدمات کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں تو آپ کا خادم ہوں، مجھے خدمت کا موقع دیجیے۔ نہیں، تم یہاں بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو۔ وہ میرے قدموں کے پاس بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، میں غمولی نوکر ہوں، اپنے مالک سے کیا باتیں کروں؟ دل کا حال تو بیان نہیں کر سکتا، پتہ نہیں یہ دل کے کیسے ہیں۔ مجھے صرف خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ چاہے تو جمیلہ کو بربادی سے بچا سکتا ہے، اس کی شادی کو روک سکتا ہے۔ ہاں جمیلہ، کبھی میں نے قسم کھائی تھی کہ تیری خوشیوں کے لیے جان دے دوں گا، مگر جان دینے کا فائدہ کیا ہے؟ تجھے خوشیاں تو نہیں مل سکیں گی۔ غریب کی محبت ہمیشہ پٹواریوں اور ذمہ داروں کی سیج پر ہو جاتی ہے۔ میں بھی دوسروں کی طرح یہ تماشا دیکھتا رہ جاؤں گا۔ تم خاموش کیوں ہو؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ جی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ادنا ملازم ہوں، اپنے مالک سے بھلا کیا باتیں کر سکتا ہوں؟ بہت سی باتیں کر سکتے ہو، مثلا یہی بتاؤ، پٹواری جس سے شادی کرنا چاہتا ہے کیا اس کا نام جمیلہ ہے؟ جی ہاں، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ بارات کہاں جائے گی؟ کہیں نہیں، جمیلہ اسی حویلی میں رہتی ہے،
बचपन से हम दोनों को कहते कहते रुक गया। फिर बात बदल कर बोला, हम दोनों इस हवेली में काम करते हैं। फिर तो तुम उसे खूब अच्छी तरह जानते होगे, उसे चाहते भी होगे। जी, उसने ऐसे चौंक कर देखा जैसे दिल का भेद खुल गया। फिर इसी वक्त बाहर से पटवारी की आवाज़ सुनाई दी, रहीम अंदर क्या कर रहा है, चल इधर आ। उसने उठते हुए मेरी इजाज़त तलब नजरों से देखा। मैंने इजाज़त दे दी, वो चला गया। घर का दरवाज़ा बंद होती कमरे का दूसरा अंदरूनी दरवाज़ा खुला। उसके साथ ही छम से पायल बजी, तक से दिल धड़का और मैं संभल कर बैठ गया। वो कौन थी? मेरे लिए अजनबी थी। गुलाबी रंग के लिबास में गुलाब की तरह निगाहों के सामने खिल रही थी। गोरे चमचाते बदन से चांदनी फूट रही थी। चेहरा शहाबी शहाबी, आंखें शराबी शराबी थी। वो शरबत की ट्रे उठाए मेरी तरफ आ रही थी। उसने करीब आकर मुझे सलाम किया और ट्रे को मेज पर रख कर एक गिलास में शरबत डालने लगी। मुझे खतरे का एहसास हुआ। क्या पटवारी की ये कोई साजिश है? हो सकता है उसने शरबत में की मिठास में मेरी मौत को छुपाकर उस रुचबाब की ट्रे में सजा कर भेजा हो। ऐसा हो सकता था। वो अपनी हिनाई हथेली पर गिलास सजाकर मेरे सामने आ गई। इसकी झुकी झुकी नजरें कह रही थी, लीजिए नोश फरमाइए। मैंने पूछा, शरबत ज्यादा मीठा तो नहीं है? नहीं, मैंने अपने हाथों से बनाया है। फिर तो इस शरबत में हिनाई हाथों की खुशबू रची होगी। वो शर्मा कर बल खा गई। निगाहों के सामने फूलों भरी डाली लचक गई। कौन हो तुम? शादो। मैं दीना पटवारी की अब बेटी हूँ। मैं उसके झिझकने पर गौर न कर सका। यह देखकर ज़हन को झटका सा लगा था कि इस जलील ने बहर अपनी इज्जत का भरम रखने के लिए अपनी बेटी को चारा बनाकर मेरे पास भेजा था। मैंने शादो को चुभती हुई नजरों से देखकर कहा, तुम जानती हो तुम्हारा बाप मेरा दुश्मन है, इसलिए ये शरबत पहले तुम पियोगी। मेरे अब्बा कभी तुम्हारे दुश्मन थे, अब नहीं। मैं कसम खाती हूँ इस शरबत में कुछ नहीं। आप इतने अच्छे हैं कि मैं बहुत देर से चुप चुप कर आपको देख रही हूँ। मैं आपको जहर नहीं दे सकती। ये गिलास पीकर सबूत दो। मैं बातों से कैल नहीं हो सकता। उसने बड़ी संजीदगी से मुस्कुराकर मुझे देखा, फिर गिलास को होठों से लगाकर शरबत पीने लगी। मेरा शुबा गलत साबित हुआ। उसने गिलास खाली कर दिया, फिर दूसरी गिलास को भरकर मेरे सामने ले आई। मैंने गिलास हाथ में लेते हुए पूछा, तुम्हारे बाप ने जो कुछ तुम्हें सिखा पढ़ाकर भेजा है वो मुझे बता दो। ये कहकर फौरन उसके ख्यालात पड़ने लगा। वो अपने दिमाग के अंदर कह रही थी, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, इन्हें कैसी शर्मिंदगी होगी। शादो मुझे उलझा रही थी। वो सोचते वक्त बाप से नफरत भी कर रही थी और बोलते वक्त बड़ी हमदर्दी से उसकी हमायत भी करती जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बार बार इसकी सोच को पढ़ा, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादातर मेरी मुतल्लक सोचती रही और मुतासर होती रही। जैसे मर्द किसी जवान औरत के मुतल्लक गहरी दिलचस्पी से सोचता है, वही असली से उसके ख्याल थे। जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक है, मैं उसे कभी ललचाई हुई नज़रों से न देखता, लेकिन वो एक खुले हुए दावतनामे की तरह आई थी और खामोश तहरीर कह रही थी कि अगर कबूल है इज्जत शरफ। तहरीर कह रही थी, आज जीप से मीम से, यानी जवाब मतलब फरमाए, मेरा बाप इंतजार कर रहा है। ऐसे सीन दावत को कबूल ना करता, लेकिन उसे कबूल करने का मतलब ये होता कि मेरी वजह से जमीला पटवारी की जहनवी जिंदगी में दाखिल हो जाती। मैं अपनी ज़िंदगी की चंद अय्याश लम्हों की खातिर गरीब की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। मैंने इससे कहा, अब तुम जाओ और अपने बाप को यहाँ भेज दो। आप मेरे अब्बा की मजबूरियों को समझ गए हैं ना। उसने दोनों हाथों से मेरे हाथों को थाम लिया। उसके नक्शो नगार से सजी हुई हथेलियाँ जरा नरम थी, जरा गर्म थी। मैं दूर तक बदन की गर्मी महसूस कर रहा था। हसीन औरत अपनी खामोश अदा से मर्द को अपना मामूल बना लेती है। उसके सहर से बचने के लिए मैंने अपनी आंखों से काम लिया। वो मेरी जानब पुरुमीद नज़रों से देख रही थी। यकबैग मेरी निगाहों के तेवर बदल गए। मेरी आंखों से मगनातीसी लहरें निकली और उसकी आंखों पर जम कर रह गई। वो बिल्कुल साकत थी। मैंने भारी पर कम लहजे में हुक्म दिया, मेरा हाथ छोड़ दो। उसके हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। फिर मैंने हुक्म दिया, अब तुम अपने बाप के पास जाओ, उसे यहाँ भेज दो। उसकी आवाज़ जैसे किसी अंधे कुएं से आ रही। मैं अपने बाप के पास कैसे जाऊँ? मैं नहीं जानती। कब्र कहाँ? मैंने उससे ताज्जुब से देखा। क्या तुम्हारा बाप मर चुका? हाँ, दीना पटवारी था। तुम्हारा कौन है? मेरा सरपरस्त है। मैंने बचपन से उसके यहाँ
बेटी कहता है, मगर बेटी नहीं समझता वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करता है। जैसे एक दलाल करता है या उसका कोई बड़ा साहब आता है तो मुझे रिश्वत के तौर पर पेश करता है। क्या तुम उन साहब लोगों को जानती हो? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। हाँ, इतना समझती हूँ, जब कभी किसी के साथ मेरी एक रात काली होती है, पटवारी के बारे न्यारे हो जाते हैं। वो पेशकार के जरिए पेशी के तरीकों में गड़बड़ कर देता है। कभी किसी मुतनाज़ा ज़मीन का मुकदमा जीत लेता है, कभी किसी जिम्मेदार के मुकदमे में उलझा देता है, कभी किसी को मुकदमों की उलझनों से निजात दिला देता है। ये जो उसने जायदाद बनाई और ज़मीनें हासिल की, उस असूल के दौरान मेरी जवानी लहू लहू होती रही। मेरे सरपरस्त, मेरे मेहरबान, मेरे बनास्पति बाप के घर में जितने चिराग रोशन होते हैं, इनमें मेरा लहू जलता रहा। मैं उसे हमदर्दी से देखने लगा। मुझे इस पर बड़ा तरस आ रहा था। अभी इसकी उम्र ही क्या थी? अभी से प्यार की लताफ़तों को समझना था, किसी गबरू जवान को दिल देना था, उसे अपने दिल में बिठाना था और एक छोटे से घरों की जन्नत के सपने देखना था। लेकिन एक बेरहम ताजर उसके सपनों को अपने मुनाफा के भाव पर फरोख्त कर रहा था। मैंने पूछा, तुम जवान हो, तुम्हारा दिल किसी को चाहता होगा, तुम्हारी आंखें किसी को पसंद करती होंगी, तुम किसी का नाम लो, मैं इससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। पटवारी भी यही दिलासे देता है, बहुत जल्द किसी लड़के से मेरी शादी करा देगा। मैं तुम्हें झूठे दिलासे नहीं दे रहा, तुम बताओ तो सही, किसको चाहती हो? मैं तुम्हें चाहती हूँ, बहुत देर से तुम्हें छुप छुप कर देख रही हूँ। मुझे अपनी हसीयत मालूम है, तुम बड़े आदमी हो, शायद मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकती, मगर पटवारी ने यह मौका दिया है। लेकिन मैं शादी के मुतल्लिक़ कभी नहीं सोचा। तुम मेरा ख्याल दिल से निकाल दो और किसी अच्छे नौजवान को पसंद करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी संवार दूंगा। ये कहकर मैंने नज़रें फेर ली और ख्याल का राब्ता ख़त्म कर दिया। यकबैक वो होश में आ गई। मैंने किन आँखों से उसे देखा, वो कुछ हैरान सी, कुछ परेशान सी मुझे देख रही थी। मैंने पूछा, क्या बात? हाँ, कुछ नहीं। उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। वो सोच रही थी कि अभी मुझे क्या हो गया था, क्या मैं इस नौजवान से बातें कर रही थी? इसकी आंखें कितनी अजीब है, मुझे भी डर लगता है, इसकी तरफ बह जाने को दिल चाहता है। मैंने कहा, शायद तुम कुछ परेशान हो, इसलिए कहता हूँ कि अभी यहाँ से जाओ। पहले मैं तुम्हारे बाप से बात करूँगा, फिर तुम्हारे किसी काम आऊँगा। अब जाओ यहाँ से। वो उठकर चली गई। उसके जाने के बाद पटवारी कमरे में आया। उसके आते ही उसने कोई शामदाना अंदाज में पूछा, बेटे तुमने शरबत पी लिया? मैंने उसे नफरत से देखते हुए कहा, तुम मुझे बेटा ना कहो। जो बेटी को किसी की तन्हाई में भेजता हो, वो किसी का बाप या बुजुर्ग कहलाने का मुस्तहिक नहीं। तुम अपने बरातियों को यहाँ बुलाओ, मैं तुम्हारी शादी या बर्बादी का फैसला सुनाऊंगा। वो दोनों हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाने लगा। फरहाद, मैं तुम्हारे कदमों पर सर रखने को तैयार हूँ, मुझे लोगों के सामने जलील ना करो। तुम मेरे कदमों पर सर रखोगे, मैं ठोकर से उड़ा दूंगा। तुम बेटी के रिश्ते के दलाली हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। सुनो, अभी जमीला की शादी रहीम से होगी और तुम ये तमाशा देखोगे, और ये वेली चचा जान ने तुम्हें रिश्वत के तौर पर दी थी। तुम अभी से छोड़ कर जाओगे और उसके कागजात लाकर मेरे हवाले करोगे, वरना मैं अदालत में तुमसे वसूल कर लूँगा। आज से बदनामी, जिल्लत और रसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। उसका मुँह यूँ लटक गया जैसे अब तब मैं रोने वाला हूँ, और वो अंदर ही अंदर रो रहा था और अपनी बेबसी पर हंस रहा था। मेरी संग दिली का उसे यकीन हो गया था, शादो जैसी हसीन लड़की मुझे मूव न कर सकी। वो आखिरी हरबा भी नाकाम हो गया, इसलिए वो अपने अंजाम के मुतल्लिक सोच रहा था। ये मुझ पर कैसी तबाही आ गई, जमीला से शादी नहीं होगी, मुझे बूढ़े को समझ कर कहके लगाए जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो अपने अंदर पागलों की तरह हंस रहा था। मैंने भी इसकी दिमागी कमजोरी से फ़ायदा उठाकर उसकी सोच में कहके लगाए। मैं बूढ़ा हूँ, एक जवान छोकरी से शादी नहीं कर सकता। हाँ हाँ, वो सटपटा कर रह गया। जल्दी से अपने सर को थाम कर सोचने लगा, ये मुझे क्या हो गया है, मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए। मैंने उसकी सोच पर काबू पाते हुए कहा, हालात काबू से बाहर है, अब ये शादी नहीं हो सकेगी, मुझे इस हवेली से निकलना होगा। हाँ 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 हाँ, मुझे जालसाजी के जुर्म में जेल की हवा खाना होगी। हाँ हाँ हाँ, ये उल्लू का पट्टा फराज मुझसे इंतकाम लेकर रहेगा, इस इंतकाम से बचने की कोई सूरत नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो अचानक ही अपनी बेबसी पर सचमुच हंसने लगा। सोच के भाव में वो कह के हल्क तक आ गए थे और होठों के बंद दरवाजे खोलकर बाहर निकल रहे थे। मैंने सोच के
کے ذریعے اسے ایک بہترین مشورہ دیا۔ ہاں، مجھے وقتی طور پر پاگل پن کا ڈھونگ رچانا چاہیے۔ پاگل بن جانے سے کسی کی سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہوگا کہ ایک پاگل کی شادی کسی ہوش مند لڑکی سے نہیں ہو سکتی۔ مجھے انکار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، شادی خود ہی رک جائے گی۔ فرہاد کی دوسری شرط بھی پوری ہو جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے فرہاد مجھے پاگل سمجھ کر عدالت تک نہ گھسیٹے۔ واقعی ایسے سنگ دل دشمن کے انتقام سے بچنے کی یہی صورت ہے کہ میں پاگل بن جاؤں۔ یہ سوچتے اس نے کہکا لگاتے ہوئے اپنا گریبان چاک کر لیا اور ایک شرابی کی طرح ادھر ادھر لڑکھڑانے لگا، دیوانگی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ میں پاگل ہوں، ہاں ہاں، تو بھی پاگل، میں بھی پاگل، میرا باپ بھی پاگل، یہ ساری دنیا پاگل ہے، ہاں ہاں ہاں۔